الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها كل حین بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. محترم امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ، محترم SIO صدر اور ذمہ داران میرے سامنے تشریف فرما، میرے پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں، یہاں آنے کے پہلے تھوڑا سر درد تھا، لیکن یہاں جب پہنچے اور یہ عالیشان مجمع کو جب دیکھا تو پتہ نہیں میرا سر درد کہاں چلا گیا، بخار جیسا محسوس ہو رہا تھا، اور ابھی میں واقعی بہت انرجیٹک فیل کر رہا ہوں. میرا عنوان ہے ایمپاورمنٹ، مسلم ایمپاورمنٹ کے سلسلے میں. اور میں نے یہاں کے آرگنائزر سے پوچھا کہ یہ کانفرنس میں سب سے زیادہ جو SIO کے نوجوان اور طلباء آئے ہیں وہ کون سا ایج گروپ سے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ سب سے زیادہ 22 عمر سے اور اس سے نیچے لوگ. ایک دنیا کے مشہور ایک ڈیموگرافی ایکسپرٹ ہے جو مارک میکرین ان کا نام ہے، جنہوں نے سماج کو ایج گروپ کے حساب سے ڈیوائڈ کیا ہے اور اس کو نام دیا ہے. اور یہ جو 76 اور 80 وغیرہ جو ہمارا جیسا بورن جو لوگ ہیں ان کا نام ہے ملینیلز، اور 80 سے بعد 96 تک کا عمر کے لوگ اس کو بولتے ہیں جنریشن Z. اور اس میں یہاں پر سب سے زیادہ لوگ جو بیٹھے ہیں وہ جنریشن Z کے لوگ ہیں. اور اس کے بعد 2011 سے لے کے 2022 تک اور 2024 تک جانے والا جو ایج گروپ ہے اس کو جنریشن الفا کہتے ہیں. الگ الگ پیڑھی، الگ الگ جنریشنز. یہ جنریشنز اس لیے ڈیوائیڈڈ ہے، وہ جس سماج میں رہ رہا ہے وہ سماج کے جنرل کیریکٹرسٹکس کے ساتھ وہ پیڑھی یا جنریشن سنکڈ ہوگا، اس کا سنکرونائزیشن ہوا ہوگا. تو اس کا الگ سا ایک ان کا بیہیویئر پیٹرن ہوگا، ان کا سوچ سب اس طریقے کا ہوگا. انلیس اینڈ انٹل جنریشن ملینیلز ہم لوگ جنریشن Z کے ایسپریشنز اور ان کے خواب اور ان کے سوچ کے پیٹرنز کو نہ سمجھے تب تک جنریشن گیپ رہے گا. تب تک ان کے ایسپریشنز کے بارے میں کبھی بھی ان کے پیرنٹس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور وہ سوچے گا کہ جیسا میں آگے بڑھا ہے ویسے ہی میرا بچے بھی آگے بڑھنا ہے. میں جب بچپن میں ایک خط مجھے لکھنا ہے، میرا ایک رائٹنگ اگر پبلش کرانا ہے، میرے لیے اچھا زبان ہونا ضروری تھا. اچھے زبان میں لکھنا اور ہائی لٹرل جو ہے سٹینڈرڈز کے ساتھ اس کو پیش کرنا، اور اس کو ایڈیٹر کے سامنے ایک پوسٹ کارڈ میں بھیجنا، اور ایڈیٹر اس کو دیکھنے کے بعد وہ جو ہے اچھا یہ میرے حساب سے صحیح نہیں ہے وہ پھینک دے گا. لیکن اگر پبلش ہوتے تو بہت سارے چیلنجز کے بعد ایک آدمی کا چیز پبلش ہو جاتا ہے. ان کے دیگر صلاحیتیں جیسا کہ ان کے گانا، ان کے ترانہ، ان کے جو آرٹ فارمز، یہ سب چیز لوگوں کے سامنے لانے کے لیے تو بہت دور کی بات ہے. کچھ ٹیلی ویژن چینلز ہوتے ہیں اس کے تو اندر آنا ناممکن بات ہے. میرا
प्रेजेंटेशन होना नामुमकिन बात है, लेकिन आज ऐसा एक जनरेशन है जो ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ, जो भी क्रिएशन है वो अपने मिट्टी से कुछ खेल रहा है, लेकिन वो अपने मोबाइल से वो शूट करके वो दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। मतलब मेरा और मेरे बच्चों के बीच में कितना अंतर है। अगर मेरे हिसाब से अगर मैं उनको नापने के लिए कोशिश करूं तो फिर मैं गलत जो है पैमाना लेके और यार्ड स्टिक लेके मैं उनको नापने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, उनका नाम रशीद है, अरक्कल रशीद। वो अपने बचपन में उनके फैमिली अरक्कल यानी एक किंगडम, मतलब हैदराबादी निज़ाम जैसा, केरला में एक बड़ा निज़ाम, अभी भी वो निज़ाम मौजूद है। उसके क्वीन जब मर जाते हैं तो नया एक क्वीन ये हो जाता है, उसको पावर में लाते हैं। अभी भी एक सिंबॉलिक क्वीन मौजूद है, अरक्कल बीवी। वो फैमिली एक किंगडम या रॉयल फैमिली का हिस्सा है रशीद साहब। रशीद साहब के अब्बू एक बड़ा टैक्स ऑफिसर है। उन्होंने अपने बच्चों के बारे में बहुत बड़ा ख्वाब देखा था। रशीद साहब के अब्बू ने रशीद साहब के बारे में ये सोचा कि मैं मेरा बच्चों को, मेरे ये रशीद को एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनाऊंगा, वो साइंस फील्ड में जाना है। और रशीद साहब तो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे, और उनके लिए सबसे बड़ा जो इकिगाई है या उनके जो अंदर वाला जो पैशन है, वो अगर अभी उनसे पूछे गए तो वो बता रहे थे कि मेरा बचपन में सबसे बड़ा पैशन ये था कि घर में जब इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर्स आते थे, ये इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर्स के सामने उनके साथ बैठ करके वो जो पाइप काटने वाला, उसके अंदर से जो है वायर निकालने का, और दो अलग अलग किस्म के जो है जॉइंट, टी जॉइंट, एल जॉइंट वगैरह लगाने का और उसको कनेक्ट करने का, ये सब चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता था। और हमेशा जब प्लम्बर्स और इलेक्ट्रिशियंस जब वहाँ काम करते हैं, उनके साइड में बैठ करके वो बहुत गौर से देखते थे। छोटे में मतलब 5 क्लास 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में पढ़ते हुए, और वो कभी कभी इलेक्ट्रिशियन से पूछते मैं भी मदद करूँ, वो सेलो टैप, वो जो इंसुलेशन टैप है उसको लगाने में मैं भी मदद करूँ, तो वो भी मदद करते थे। और जब 10th स्टैंडर्ड के बाद अब्बू ने उनसे पूछा आपको क्या बनना है, आपको कौन सा कॉलेज में पढ़ना है, दुनिया के कौन सा यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, तो वो मुस्कुरा के अब्बू से बोला मुझे एक इलेक्ट्रिशियन बनना है। 10th स्टैंडर्ड के बाद मुझे एक प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन करने, इलेक्ट्रिक का काम करने वाला आदमी बनना है। तो अब्बू ने बताया ये क्या बात है, मजाक कर रहे हैं या सीरियस है? बोला नहीं मैं सीरियस हूँ, मुझे इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर बनना है, उसके अलावा कुछ नहीं बनना है। अच्छा, तो फिर वो तो मैं नहीं कर सकता। अब्बू कम्प्लीटली कोऑपरेट नहीं किया, कम्प्लीटली उनसे बोला कि ये तो मुझसे नहीं होगा, मैं अपने आप को पढ़ाऊँगा नहीं। लेकिन इनके जो ज़िद्दी यानी इनके जो इंटरेस्ट देखने के बाद इनके जो अंकल है, जो अम्मी के मामू मतलब ब्रदर है, मामू, उन्होंने बताया कि काम कीजिए मैं आपको ज्वाइन कराता हूँ, और उनको एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में ज्वाइन कराया। एक पॉलिटेक्निक जहाँ पर वो पॉलिटेक्निक पढ़े, ये है 1970s की बात। और उसके बाद उन्होंने जॉब करना था, तो उनके मामू ने बताया कि मैं कतर में हूँ, मैं आपको कतर में लेके आता हूँ, आपको यहाँ कोई अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, और आपके अब्बू तो आपको खिलाफ आपके जो है गुस्से हैं आपके ऊपर। तो इन्होंने इनके मामू के कहने के मुताबिक बॉम्बे चले गए, केरला से बॉम्बे, और वहाँ जाके एक गोडाउन में जाके रहना 1 महीना, क्योंकि वहाँ इस तरीके का सिस्टमैटिक रिक्रूटमेंट प्रोसेस वगैरह नहीं था इस अभी जो हो रहा है 80s 90s 2000 में। तो उसमें जब कॉल आते हैं तो उनको जाना है एयरपोर्ट, तो वहाँ पर बहुत कठिन तरीके से उन्होंने ज़िंदगी बिताई, बहुत लंबा स्टोरी है। फिर उसके बाद वो कतर पहुँचते हैं, बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा जो है स्ट्रगल के बाद जब कतर पहुँचते हैं तो अरबी, वहाँ पर कतर अभी जो आज देख रहे हैं स्काई स्क्रैपर्स और जो है मॉडर्न एक सिटी जैसा नहीं है कतर। कतर एक बहुत ही मतलब एक अंडर डेवलप्ड एक सिटी है। एक सिटी है दोहा। दोहा में उनके अबू उनके अरबाब ने बताया कि देखिए ये पिकैक्स है, आपको खुदाई करना है। तो पिकैक्स लेके उन्होंने बहुत
इंथुसियास्टिकली, बहुत ही एनर्जेटिकली, बहुत फुल पैशन के साथ वो खुदाई करना शुरू किया। और उसमें से उन्होंने जो है पाइप लगाया, उसके अंदर से उनको बोला कि आपको पानी जो है एक तरफ तक पहुंचाना है। ये उन्होंने बहुत पैशनेटली उन्होंने किया, और 1 साल 2 साल वो पैशनेटली जो है ये काम कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत करके, मतलब इतना गर्मी में इतना ठंडे में वो काम कर रहे हैं। उनके पैशन को देख के उनके अरबाब ने बोला कि देखिए मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल दुकान है, वो दुकान में आप आके रहिए, उसका मैनेजर हो गया, आपको सब चीज़ मालूम है, आप इसके माहिर बन गया है, वहाँ पर मैनेजर होकर रहिए। 1 साल में उन्होंने वो शॉप को 5 या 6 डिफरेंट ब्रांचेस होकर उन्होंने डेवलप किया। और 6 साल जब मुकम्मल हुए तो उनके अरबाब से उन्होंने बताया, उनके जो अरबी है, उनके जो मालिक है, उनसे बताया कि क्यों नहीं हम एक नया कंपनी शुरू करते हैं, उसका नाम है, मतलब बेसिकली मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, MEP कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी क्यों नहीं शुरू करते। तो MEP कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी शुरू किया फ़ौरन। रशीद अगर बोल रहे हैं तो अरबाब तैयार, फ़ौरन उन्होंने जो है पूरा तरीके से उसका इन्वेस्टमेंट उन्होंने इकट्ठा किया और एक MEP कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी शुरू किया, उसका नाम है क्यूटेक। अभी फिल वक्त क्यूटेक उस ज़माने से अब तक एक बड़ा ग्रुप ऑफ कंपनीज बना है, और वो ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर हाईटेक जो स्विच गियर्स है, उसके अलावा MEP कॉन्ट्रैक्टिंग है, और इस तरीके का बहुत सारे जो है फील्ड्स में वो लोग फैलाएं। अभी फिल वक्त ये कंपनी में तकरीबन 5000 लोग काम करते हैं, नियर टू 5000 लोग, और वो कंपनी का मालिक रशीद साहब है। रशीद साहब एक पैशन को फॉलो कर रहे थे, ही वॉज फॉलोइंग हिज पैशन। दूसरा एक लड़का है, वो SIO का है, उनका नाम रिजवान आरिफ है, मेरे ये तकरीर शायद वो सुनेंगे। रिजवान आरिफ है, रिजवान आरिफ के अब्बू और उनके अम्मी जो है बहुत बड़े पढ़े लिखे फैमिली से हैं, और उनके अंकल वहाँ के केरला के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, और बहुत ही पढ़े लिखे फैमिली से हैं। रिजवान आरिफ के अब्बू अम्मी ने बताया कि देखिए तुम्हें इंजीनियर के अलावा कुछ नहीं बनना है। अच्छा, मुझे इंजीनियर के अलावा कुछ नहीं बनना है? नहीं, कुछ नहीं बनना है, आपको कुछ नहीं बनने देंगे, आपको सिर्फ इंजीनियर बनना है, ठीक है। तो 10th स्टैंडर्ड के बाद रिजवान आरिफ को अब अम्मी के जो है ज़िद्दी से उनको एक इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करना पड़ा। फर्स्ट ईयर वो कभी कभी ढकेल के धक्का दे के वो आगे बढ़े। सेकेंड ईयर वो उन्होंने मना किया कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, मैं अस्सलाम। तो रिजवान आरिफ सेकेंड ईयर में वो सोचा कि मुझे तो ये इंजीनियरिंग तो मेरा बस की बात नहीं है, मैं क्लास में नहीं जाऊंगा। रिजवान आरिफ क्लास से डिसकंटिन्यू किया। फिर उसके बाद उन्होंने कभी भी गया नहीं, कॉलेज नहीं गया। उनका पैशन ये था फोटोग्राफी। अपने घर में एक छोटा DSLR कैमरा था, ये DSLR कैमरा से वो फ़ोटो खींचते थे। वो फ़ोटो खींच के वो बड़े मतलब अजूबा, मतलब एक तरह से बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वो निकालते थे। वही उनका पैशन था। वो बटरफ्लाइज को फ़ोटो निकालते थे, नेचुरल थिंग्स को जो उनके सराउंडिंग्स में उसको फ़ोटो निकालते थे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता उनके अब्बू ने पहचान लिया और उनके अम्मी ने भी पहचान लिया, और फिर उनको भेजा लंदन। और लंदन पहुंचने के बाद दुनिया के सबसे बड़े बेहतरीन एक फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट में उनको ज्वाइन कराया। और वहाँ पर उन्होंने अपने ही पढ़ाई के बीच में BBC ने उनको आइडेंटिफाई किया, BBC के अंदर एक ऑफिशियल फ़ोटोग्राफ़र के तौर पर उनको अपॉइंट किया। और अभी फिल वक्त मेरा ख्याल में तकरीबन 29 या 27 साल होंगे। अभी तकरीबन 32 मुल्क से ज़्यादा मुल्कों वो सफ़र करके अपने फ़ोटोग्राफी पैशन को परस्यू करके वो ढेर सारे पैसा बनाए। वो क्या कर रहे थे, वो फोटोग्राफी के बारे में जब बोल रहे थे, उनके पेरेंट्स पूछ रहे थे कि अच्छा आप जो है शादियों में जाके आप फ़ोटो खींचने वाले हैं, इंजीनियर नहीं बनेंगे। लेकिन फ़ोटोग्राफी का जो एरिया है वो एक बहुत ही बड़ा यूनिवर्स है।
आज के दौर का ओपिनियन मेकिंग का सबसे बड़ा टूल फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी है, वो समझते नहीं थे। वो जनरेशन गैप है, यानी ये समाज के बारे में या मौजूदा कंटेम्पररी जो है जो भी दुनिया है उसके बारे में वो नहीं जाने थे। तो ये एक बड़ा गैप है जो आज के जनरेशन मिलेनियल्स हम लोग और जनरेशन जी और जनरेशन अल्फा के बीच में, उसके एस्पिरेशंस को समझना और उनके ख्वाब को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जापान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी थे, बचपन में मतलब खास तौर पर बच्चों को बहुत गौर से देखते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गौर से देखते थे बच्चों को, और उनके जो ऐसे चीज़ जो वो करते वक्त वो चीज़ करते वक्त वो भूल जाते हैं समय के बारे में, टाइम के बारे में वो खो जाता है, उनको खाना याद नहीं रहता है। ऐसे चीज़ वो जब करते वक्त उनको कोई बुलाते हैं तो वो सुनते नहीं हैं, क्योंकि वो उसमें पूरा तरीके से डूबा हुआ है। वो चीज़ क्या है ये आइडेंटिफाई करना, इसका नाम है, जापानीज वर्ड है इकिगाई। क्या है? इकिगाई, IKIGAI। ये इकिगाई समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हर आदमी, मेरे सामने तकरीबन 2000 लोग होंगे, लेकिन आप इसमें से हर आदमी, वो मर्द हो या औरत हो, वो गर्ल हो या बॉय हो, उनके अंदर एक इकिगाई है। वो चीज़ वो करते वक्त उनके सराउंडिंग्स वो भूल जाता है। वो समझना असल में ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, वो सबसे अहम चीज़ है। वो अगर समझ लिया और उसको परस्यू कर दिया, पैशन को, तो फिर उनका ज़िंदगी रोशन हो जाएगा। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि अच्छा मैं वो करते वक्त मुझे पैसा नहीं बना पाएंगे, इस तरीके से अगर आप सोचते हैं, आपका जो अगर नापने का पैमाना पैसा है और आप जो कोट एंड कोट करियर डिमांड्स है या मार्केट के अंदर जो सबसे ज़्यादा सैलरी मिलने वाला जॉब कौन सा है वही मैं परस्यू करूँगा, अगर इस तरीके से आप सोचते हैं तो आपको आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। ये बड़ा मुश्किल है और आपके लिए हमेशा दिक्कतें होंगी। आपके जॉब आप कभी भी लव नहीं कर पाएंगे। आपके जॉब आपके लिए एक एंटरटेनमेंट होना चाहिए, वो एक ऐसा चीज़ होना चाहिए कि अच्छा आज से बेहतर एक कल मुझे बनाना है, आई शुड प्रोग्रेस ए लिटिल बेटर। वो हो सकता है कि वो एक अच्छा जो है प्रोग्रामर उनका पैशन है, प्रोग्रामिंग उनके लिए पैशन है, उनके लिए हेल्थ एक बड़ा पैशन है, हेल्थ एरियाज में काम करना, डॉक्टर बनना एक पैशन है। लेकिन कुछ लोग हैं और बड़े एक कम्युनिटी है जो पैशन है लिटरेचर, फॉर इंस्टेंस, उनको लिटरेचर जाना पसंद है, लेकिन अम्मी अब्बू बोलते हैं कि मत जाइए लिटरेचर, उसमें जाके आप क्या करेंगे। उनके पैशन लिटरेचर है, वो दुनिया में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। क्या कमाएंगे ये नहीं हमारा जो बुनियादी सवाल होना चाहिए, जो हमारे बच्चों के बारे में और हमारे बारे में खुद भी, हम क्या कमाएंगे ये नहीं, हम कैसे शोहर हासिल करेंगे नहीं। शोहर और पैसा ये दोनों आपके पीछे से आएगा, ये आपके जहन में डालिएगा, रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली। पैसा और शोहर आपके पीछे से आएगा, आप कभी भी पैसा और शोहर के पीछे भागेंगे नहीं। आप आपके पैशन के साथ आप मेहनत करेंगे तो आपके साथ, आपके पीछे से आपका पैसा और शोहर आपके पीछे से फॉलो करेगा। ये एक बुनियादी चीज़ है। आप अगर इसके पीछे भागने शुरू करेंगे तो आपको कभी भी वो पकड़ नहीं पाएंगे, वो भागते जाएंगे सामने सामने, आप पीछे से उसको भागते पकड़ने के लिए कोशिश करेगा, आपको कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये एक बुनियादी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे जहन में हमेशा होना चाहिए। अगर 14 साल, अगर छोटे बच्चे हैं जो 14 साल पहले वाले बच्चे हैं, मेरे जनरेशन से मैं बोलना चाहूँगा, और जो पेरेंट्स हैं यहाँ पर, जो पेरेंटिंग एक बड़ा कंसर्न है, उनसे मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे फैमिलीज़ में से सबसे अच्छे ज़बरदस्त ह्यूमन रिसोर्स को, अगला पीढ़ी को बनाने का जिम्मेदारी हम सब लोगों को है। और उसमें 14 साल के पहले वाले बच्चों, वो लोग कैसे पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं आपको देख के। They carefully observe how you talk. They carefully observe how you walk, how you dress. आपके हर चीज़ वो बहुत गौर से देख रहा है और वो पढ़ रहा है। आपके जो तकरीर है, आपके एडवाइस है, उसका ज़रूरत नहीं है। आपको एडवाइस ज़रूर करेंगे, आप उनको एडवाइस कर सकते हैं। 14 के पहले आप एडवाइस ज़रूर करेंगे, लेकिन एडवाइस से ज़्यादा जो असर करेगा वो आपके एक्शन है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। और 14 ईयर्स के बाद वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, अम्मी और अब्बू ख्याल रखिए,
آپ ہمیشہ ان کو ایڈوائس مت کیجیے. ایڈوائس ان کے لیے تھوڑا اریٹیٹنگ چیز ہوتا ہے. آپ ان کو لیڈ بائی ایگزامپل اور ان کے ساتھ ایک اچھا فرینڈ بنیے. یو شوڈ بی گڈ فرینڈس ود دیم. ان کے ساتھ مشورہ کیجیے, ان کے ساتھ آپ ریگولرلی بات چیت کیجیے, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے آہستہ آہستہ آپ کے جو خواب ہے اس کو وہ فلفل کر رہے ہیں. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے. ایز اے پیرنٹ دس از سم تھنگ دیٹ وی آل شوڈ نو. ادروائز واٹ ول ہیپن از یو آر گوئنگ ٹو برج, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو برج اے گیپ, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی نیئر ٹو ہم, یو آر گوئنگ ٹو بی آؤٹ آف ہز ہول سین. ان کے باکس کے باہر ہو جائے گا. آپ کے بات چیت ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا, یہ کیا بول رہے ہیں ابو, یہ کیا بول رہے ہیں امی, ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ پیشن کو فالو کرنا اور بچوں کو لیڈ وتھ ایگزامپل اور فرینڈشپ, یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بولنا چاہوں گا کہ آپ کے بچوں کے ساتھ آپ جب بیٹھیں گے تو وہ اگر گیم کھیلتے ہیں تو وہ گیم آپ بھی کھیلیے ان کے ساتھ. اب دیکھیے مائنڈ کرافٹ اگر وہ کھیل رہا ہے تو مائنڈ کرافٹ ایز اے پیرنٹ ان کے ساتھ آپ بھی کھیلیے تھوڑا وقت, اور اس کے ٹیکنیکلٹیز آپ سمجھنے کے لیے کوشش کیجیے. وہ اگر رو بلاکس کھیل رہے ہیں تو آپ بھی بیٹھے ان کے ساتھ رو بلاکس کھیلیے, اور آپ کو سمجھ میں آئے گا ان کا دنیا کیا ہے, وہ کیا بول رہے ہیں. اکثر وہ چیز کچھ بول رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ وہ رو بلاکس کا ووکیبلری تھا جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تھا. تو ان کے پورا دنیا آپ کو سمجھ میں آئے گا. وہ اگر کارٹون دیکھ رہے ہیں, وہ اگر کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھیے, ان کے ساتھ وہ دیکھیے, تاکہ آپ سمجھ میں آئے ان کا دنیا کیا ہے. اور آپ بھی سنکرونائز ہو جائیے, صرف سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ سنکرونائز ہو جائے آپ کے بیٹے کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہمارے لیے ہمیشہ ذہن میں ہونا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ اور آخری بات میں بولنا چاہوں, کچھ بنیادی چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا 15 منٹ کے اندر. آخری بات یہ ہے کہ آپ کے بچوں جب اپنے اسکولس میں جاتے ہیں, اپنے کالج میں جاتے ہیں, وہ بہت ہی اسٹریسڈ ہوتے ہیں, بہت اسٹریسڈ ہوتے ہیں. وہ مطلب آپ سوچ نہیں سکتے. وہ اسٹریس کو سمجھنا اور وہ اسٹریس کو مطلب ایون کام کے جاب کے لیے جاتے وقت اس کو پرسیو کرتے وقت وہ انتہا اسٹریس میں رہتے ہیں. تو وہ اسٹریس کو سمجھ کے اس کو ریڈیوس کرنے کا جو ذمہ داری ہے وہ ماں باپ کا ہے, اور ان کے سراؤنڈنگ میں جتنے لوگ ہیں, بردر سسٹر, سب لوگوں کا ہے. یہ چیز اگر یہ ایکو سسٹم, یہ سراؤنڈنگس اگر آپ بنا پائیں اپنے گھر کے اندر, یہ بنیادی چیز, چھوٹے چیز ہے, لیکن دیز آر دا امپورٹنٹ فیکٹرز آف دس فیملی یونیورس. آپ کے آپ کے بچوں کو بڑا کرنے میں بڑا رول ادا کرے گا یہ چیز. تو آپ ان کے سٹرس بسٹ کرنے کے لیے جتنا کوشش کریں ان کو کریں, ان کو کبھی بھی سٹرس بڑھاوا مت دیجیے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں سے سب سے اچھے بچے, مطلب سب سے فروٹفل, مطلب جو پہلے میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا قرآن کی آیت الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون. کہ کلمۃ شہادہ ایک زبردست بیج ہے, وہ بیج سے آئے ہوئے ایک بڑا پیڑ درخت, اور وہ درخت سے آئے ہوئے پھل اللہ کے اذن سے. اللہ دنیا, یہ اسلام کے اچھا ایک ایگزامپل ہے کہ وہ لوگوں کو پھل دینے والا پیڑ ہے. اسلام مطلب کیا ہے, قرآن بتاتے ہیں وہ پھل دینے والا پیڑ ہے. مسلمان ہے, اگر مسلم بچے ہیں, مسلم بڑے ہیں, جو بھی ہے مسلمان ہیں, تو وہ پھل دینے والا پیڑ بننا, کنٹریبیوٹرز بننا, سویلائزیشن بنانے میں, یہ دور کو آگے بڑھانے میں, اس کا ٹیکنالوجی فائنڈ آؤٹ کرنے میں, اس کا ٹیکنالوجی ڈسکور کرنے میں, یہ سماج کے نئے ڈسکورس کو آگے بڑھانے میں ہمارا ہی رول ہونا چاہیے. اور وہ اگر کرنا ہے, وہ اگر درخت ہونا ہے, وہ اگر پھل دینے والا پیڑ اگر ہونا ہے, تو ہمارا گھر سے اس طریقے کا بنیادی چیزیں اگر ہم آپس میں خیال رکھیں تو انشاءاللہ ایک بہت ہی زبردست روشن. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں فاشزم اور یہ تمام چیز, یہ سب یہ لوگ جو نئے جنریشن ہیں وہ بٹر کو آپ جیسے کاٹتے ہیں ویسا نپٹ لے گا انشاءاللہ. کچھ ہونے والا نہیں ہے, سب یہ لوگ نپٹ لے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اسی بات کے ساتھ میں ختم کرنا چاہوں گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.